Good evening, everyone. On behalf of Dr. KK's Heart Care Foundation of India, I welcome you to our 90th weekly webinar. We're going to be reaching our 100 number very, very soon. Thank you so much for joining us on a week-on-week basis, helping us carry forward Dr. KK Agarwal's legacy and something that he started. He was always very, very passionate about connecting the educational fraternity of teachers, principals were very, very dear to him, and of course, all of you young students. So his whole idea was to kind of bring in and impart education using entertainment, using experts, using relatable language, and answering people's questions and really busting myths about different things. So what we've been doing is we've been really getting experts on a weekly basis to come and speak to schools, to speak to students and answer different queries. The topic for today's session is boosting your child's immune system, something that is very, very important in today's day and age. सारे बच्चे यहाँ पर जो हैं सबको सबकी मम्मी पापा को डर लगता है कि वो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे कोविड के टाइम पे उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा उनको क्या खिलाएं उनको क्या पिलाएं उनको कैसे हेल्दी रखें वो सब हम लोग आज आंसर करेंगे I would like to extend a very, very warm welcome to our co-host for the day. Thank you so much. I would first like to kind of take this opportunity to thank all the principals and the teachers for supporting this mission. Not too many of you have ever met me, been associated with me. You've of course been associated with Dr. Agarwal. The fact that you are still supporting us as an NGO, it really, really means a lot. Welcoming Mrs. Anita Sharma, Principal SD Public School, Pritampura, Mrs. Sanjana Bakshi Datta, Principal DAV Public School, Arkipuram, and Mrs. Alka Sahani, Principal Maharaja Agrasen Public School, Ashok Vihar. Congratulations, ma'am. I just heard the conversation. Thank you, and pleasure to be here. Thank you. Thank you so much. I would like to invite Anita ma'am now to say a few words. Thank you, Nana. First of all, I must congratulate Heart Care Foundation for continuing the commitment which you took 90 weeks earlier, and you are still continuing this. That you are on the mission of sensitizing the schools, bringing awareness amongst the parents and the teachers and the students regarding the various aspects of health. And today's session especially, I really appreciate this session. Not only this is the demand of the time, because with the third phase of corona, everybody is actually worried about the child's health and their immune system. And also 16th of January we were celebrating National Immunization Day. And with this National Immunization Day, I think this is the right time where every child must understand that why it is important to keep the healthy immune system, and then to have all the vaccinations in time. Government is nowadays running the campaigns to vaccinate the students between the age group of 15 to 19 years. And I have found while conversing with the parents and the children that some of them, they are a bit hesitant about the vaccination. They don't know that whether they should go for it, what kind of impact it is going to have on their health status in future, and so on. So the program which you have, that the theme which you have taken for today is very relevant and very significant. So I welcome all the parents, students, teachers on behalf of the Heart Care Foundation and SD Public School, DAV School, Larkepuram, and Maharaja Agrasen School, Ashok Vihar. And with this, I also welcome our esteemed expert today, Dr. Rajeev Chhabra. Dr. Rajeev Chhabra is associated with the Indian Medical Association as well as the Indian Academy of Pediatrics, and he's very eminent pediatrics. He has vast experience in management of the neonatal and the pediatric emergencies, medical and surgical neonatal intensive care, and is NAILS and PALS certified. His area of interest includes pediatric oncology, treatment of
hemophilics, and hemofiltration and hemodialysis, peritoneal dialysis for children, and so on. Dr. Chhabra has been very active in the field of community child health and immunization and child health clinics at various schools. He is also actively involved in research and academics and has got many publications under his belt. His interests involve taking care of kids with childhood asthma and respiratory disorders, and he's advisor to many health-based publications. So today, with his rich experience and vast knowledge, we will be getting insights about the theme. I also welcome Nana, young entrepreneur and a very dynamic, I must say, daughter of Dr. K.K. Agarwal. I am really happy to be associated with you, and I think so are all the principals, because the way you are taking forward the legacy of Dr. K.K. Agarwal is really incredible and commendable. You are committed to his passion, his values, and his principles. And this is really inspiring, I think, for the young generation. Every child who is here today must have a lesson from Naina, that how to keep the values of the parents and take them forward. Naina is a trustee of Dr. K.K. Heart Care Foundation of India and the founder of Talking Point Communications, a leading integrated PR and communication agency in India, servicing clients across the domains of startups, healthcare, technology, FMCG, education, social, lifestyle, and entertainment. And with this, I hand over to the principal, DAV RK Puram, Mrs. Sanjana Bakshi Datta. Good evening, everybody. On behalf of everybody who was present over here, the education community, I welcome everybody, parents, kids, and all those who are there as audience. सबसे पहले मैं ये कहूँगी, नैना is an example of जो हम आजकल कहते हैं कि बेटियां बेटों के बराबर होती हैं. अगर बेटियां जो है अपने पेरेंट्स की लेगेसी आगे लेके जाती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे नैना मैम जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं. जो उनके फादर ने बहुत अच्छा एक सोशल वर्क स्टार्ट किया था पेंडेमिक के दौरान, उसी चीज को वो आगे लेके जा रही हैं. दैट इज वंडरफुल एंड इट रियली मीन्स वी नीड टू क्लैप फॉर दिस. सेकेंडली, अनीता मैम ने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे गेस्ट को और नैना मैम को. आई वुड ओनली से दैट कि इस टाइम पे जब हम सब लोग डरे हुए हैं, हम सब लोग परेशान हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम उसको कोप अप कर सकें. सो आई थिंक ये जो वेबिनार है, दिस इज द बेस्ट वेबिनार एंड द बेस्ट टाइम. रीजन बीइंग कि पेरेंट्स को समझ में आएगा कि हमें किस तरह का खाना अपने बच्चों को खिलाना है ताकि इनकी उम्र बढ़े. अभी तक बच्चे जो हैं जंक फूड खा लो, जो भी चीज घर पे पड़ी है बिस्किट खा लो, कोई भी चीज है, वो हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, बाकी सब कुछ खाएंगे. उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि हम वो हरी सब्जियों से क्या फायदा है. अब इस टाइम पे 2 साल के पेंडेमिक ने हमें ये भी सिखा दिया कि हरी सब्जियों को हम कितना इनोवेटिव और क्रिएटिव वे से हम उनको प्रेजेंटेबल बना के बच्चों को खिला सकते हैं. लेकिन इस वेबिनार में हम ये समझेंगे कि वो हरी सब्जियां जो हैं, जिसको बच्चे जो हैं ना कहते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. और बच्चों को भी समझना चाहिए और बड़ों को भी समझना चाहिए कि जंक फूड एक सोल्यूशन नहीं है, वो बीमारियों को ही बुलाता है. जो हेल्दी फूड है वो वही फूड है जो हमारे विलेजर्स बनाते हैं, जो हमारे फार्मर्स उगाते हैं, वही है, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा ताकत देगा. जो हरी सब्जियां हैं, दूध है, और के अग्रवाल सर कहते थे 7 कलर्स होने चाहिए खाने में, तो वो 7 कलर्स हमें यहीं से मिलेंगे, जंक फूड में नहीं मिलेंगे. सो आई वेलकम ईच एंड एवरीवन एंड आवर एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर साहब, so that he can guide us, guide parents, guide kids who are there. I'm seeing on many video cameras, the kids are there listening to it. They also understand कि हाँ हरी सब्जियां खानी चाहिए. तो इसीलिए तभी देखो कभी भी भैंस को चश्मा नहीं लगता, गाय को चश्मा नहीं लगता, क्योंकि वो हरी सब्जी खाती है. इसीलिए हमें भी हरी सब्जी खानी पड़ेगी ताकि हमें चश्मा देर से लगे.
हमारी उम्र हो जाएगी तब चश्मा लगे, पहले चश्मा नहीं लगे. So I welcome each and everyone, and on behalf of each and every parent, I am also a parent, each and every parent, I thank sir that he has taken out time from his busy schedule and is present in the webinar. Welcome sir, welcome Naina ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the kind words, both Anita ma'am and you. Alka ma'am, over to you for a quick address. Thank you so much. And it is such a pleasure to be associated with Dr. Agarwal's Heart Care Foundation. And since it's my first time over here and the good words that are coming about for you, Naina, I'm really impressed, like the earnest efforts that you are putting in this. And what I believe, because I come from the education fraternity, I believe that, if we make people aware, we have already won 50% of the battle. If we are aware how to go about it, then we can do. Everyone can do. The problem is we are not aware right now. We do not know how to go about with it. We have this COVID-19 pandemic that is going on. That is how you started this webinar. This series was started. And we have another year, another school year under the cloud of this pandemic. And we actually have to keep our children healthy. There is not going to be any magic wand, or there's not going to be any supplements which are going to help us. It's really shocking when we find that students, they're coming up with a problem of ricket. And earlier it was the children who are malnutrition, they do not belong to the good families. But when now we see the students coming up with this problem, we have to rethink, we have to just ponder over where are we going wrong, what has happened. And then we realize that they're not going out to play. That is also a part of our immunity. We need the sunlight, we need to go, we need to stay active. Immunity does not only come about but having the healthy food and all, which I know you are Nana and Dr. Chhabra are going to take forward. Anita ma'am and Sanjana have already set the tone of the session. So once again, on behalf of Nana, on behalf of KK Heart Care Foundation, I welcome all of you. And I give the spotlight now to Nana to take forward the session, our young entrepreneur, our young lady with us. So, Nana, the stage is all yours. Thank you, ma'am. Welcoming Dr. Rajeev Chhabra, Chief of Pediatrics, Artemis Hospital, Gurgaon. Thank you so much, sir, for taking out time from your busy schedule. We truly appreciate it. There are a lot of eager students and parents sitting here wanting to know कि हम बच्चों की immunity कैसे बढ़ाएं, what to do during the pandemic. There's a lot of fear. There's a lot of sort of unrest amongst parents. बच्चों को भी ये वाला ओमाइक्रॉन का वेव इम्पैक्ट कर रहा है. So, children are stuck at home since the past 2 years. They've gone back to school only for a brief amount of time. So, what can the children really do to boost? And children, from what I understand, already have a good immune system. But more and more we are finding that children are also leading an unhealthy lifestyle. So if you can help us with how to boost their immunity, how ma'am had said in the beginning, there's a lot of vaccine hesitancy also. If we can also address that, especially in the current times. And what should parents really do for their kids? First of all, I'm thankful to all of you for giving me this opportunity to speak and interact with all of you. So considering the knowledge level which Alka ma'am, Sanjana ma'am, and Anita ma'am has shared, I don't think there is anything which I can add upon. I'll try to do so, but already the education or the knowledge in the professors and teachers and the students is at much more level, I can say. So there is an old saying that if you don't consider food as medicine, the medicine will become food later on, which means कि अगर आप अभी फूड को मेडिसिन समझ के नहीं खाएंगे, आने वाले समय में ये मेडिसिन का ही आपको फूड बना के खाना पड़ेगा. तो ब्रेकफास्ट में आप 4 गोलियां खा रहे होंगे, लंच में आप 8 गोलियां खा रहे होंगे, डिनर में आप 8-10 गोलियां खा रहे होंगे. So these kids of this tender age group has to decide कि इन्हें आज माँ बाप का बताया हुआ अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, पौष्टिक खाना खाना है,
या लेटर ऑन जब ये हमारी एज के हो जाएंगे तो इन्हें दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना है. आई एम श्योर नन ऑफ दीज किड्स would like to go to hospital for getting an injection done every now and then. इन बच्चों को कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि जी आज हम जो खाना नहीं खा रहे हैं या माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, लेटर ऑन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से इंटरेक्ट करके एक तो फीस भी लगेगी, ऊपर से इनको इंजेक्शंस वगैरह भी लगेंगे, एंड nobody is happy taking those injections, isn't it? I'm sure all kids will agree to it. So first of all, we'll start with corona, since everybody is so eager to know about corona times. There were many viruses before corona, and there will be many more viruses in coming years as well. Corona is a recent surge, and it has come in pandemic form. So there is a difference between epidemic and pandemic. Epidemic होता है जब sudden spurt of virus होता है in a particular society, in a particular geographical area, at a particular timing. But when it cross borders, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाता है, it becomes a pandemic. Considering कि इसकी जो इतनी spreadability है, इतनी तेज ये फैलता है, it involves most of the countries simultaneously in the world. इसका बचाव किस में है? इसका बचाव जो 2 साल पहले जब आया था, जब हमने पाया था कि सेफ डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि ये चीज जब हम हाथ गंदे इसको टच करते हैं और आंख पे लगाते हैं या चेहरे पे लगाते हैं तो ये वायरस अपने शरीर में चला जाता है. सो इन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये ही रहेगी कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, एंड मच मोर इम्पोर्टेंटली हैंड वॉश किए बगैर अपने फेस को टच ना करें, और अगर डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, मास्क लगा सकें तो नथिंग लाइक इट. बट मच मोर इम्पोर्टेंटली, एक तो जब भी कोई बीमार हो, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, सो कम्युनिटी में न जाएं, दूसरे को इन्फेक्शन न दें, उसी से ही ये चेन ब्रेक हो सकेगी. सो अगर किसी भी रूप से आप स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं, ऑन द एयर साइड ऑफ कॉशन, आप घर से न निकलें, घर में भी लोगों से दूर डिस्टेंस बना के रखें ताकि घर वाले भी इन्फेक्शन न हो सके. जहां तक रही बचाव की, दीज आर द 3 बेस्ट वैक्सीन्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस सिंस द डे कोरोना स्टार्टेड इन इंडिया. जो बाकी के इन्वेंशन हो रहे हैं, जो कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, इफ देयर इज एनी हेजिटेंसी इन द माइंड ऑफ पीपल, आई कैन टेल यू कि सबसे पहला वैक्सीन का डोज हम डॉक्टर्स को लगा था और हेल्थ केयर पर्सनल्स को लगा था, जिन्हें की फ्रंटलाइन ऑफिसर्स बोला जाता है. ये उसी का नतीजा है कि सेकेंड वेव, जो कि बहुत घातक थी, डेल्टा वेव जिसको बोला जाता है, बहुत जानलेवा थी, उससे बचाव अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी को किसी ने किया है तो वो 2 डोजेस वैक्सीन के थे जो हमें समय पे लग गए थे. अब जहां तक सवाल रहा कि गवर्नमेंट ने जो 15 से 18 साल वालों के लिए भी वैक्सीन चालू कर दिया है, दैट्स अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव, क्योंकि बच्चों में एज सच कोरोना के इम्प्लीकेशंस बहुत कम हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और माइल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस का रिसेप्टर होता है शरीर में, वो बच्चों में बहुत कम पाया जाता है. देयरफॉर बच्चों में इन्फेक्शन की चांसेस कम है, और जो सीवियरिटी होती है वो और भी कम होती है. इन्फेक्शन फर्स्ट वेव में भी बच्चों को उतना ही हुआ था, सेकेंड वेव में भी उतना ही हुआ था, थर्ड वेव में भी उतना ही हो रहा है. इट्स जस्ट दैट कि उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत कम है, बट इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसे हम मिस्क बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर, वो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. वो थोड़ा सा घातक हो सकता है इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. देयरफॉर इस वजह से जो भी सरकार ने जो वैक्सीन का प्रावधान किया है 15 से 18 साल वाले बच्चों में, उनमें लगवा लेना चाहिए. इसके कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द जीन्स, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है नॉट ओनली अगेंस्ट कोरोना, बट जो सारी इतनी सारी बीमारियां हैं, 70, 80, 100 सालों से हमारे पास वैक्सीन का अनुभव है फॉर वेरियस सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, और कई बीमारियों का निजात भी हमने इन्हीं वैक्सीन की वजह से ही पाया है. वैक्सीन कोई हार्म नहीं करते, माइनर साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, जैसे पेन हो गया, फीवर हो गया, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, और उसके लिए पैरासीटामोल लेने से काम हो जाता है. सो अगर किसी के दिमाग में किसी तरह का कोई संशय है कि ये लेने से जीन चेंज हो जाता है या आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है.
हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वैक्सीन लिया है तो आपको 2 से 3 हफ्ते इम्यूनिटी पैदा होने में लग जाते हैं, वैक्सीन इंड्यूस्ड प्रोटेक्शन आने में। देयरफॉर 2 से 3 हफ्ते तक तो अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तो रहा वैक्सीन के बारे में। अब हाउ टू प्रोटेक्ट अदरवाइज अगेंस्ट इन्फेक्शंस। सर्दियों में वैसे भी आपने देखा होगा कि खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह बहुत ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू पीक समर्स। तो मेरा शुरू से ही सुझाव ये रहा है पेरेंट्स के लिए, एंड आई बिलीव न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। सो मैं हमेशा फोकस करता हूँ फॉर हनी 1 टीस्पून अ डे। More and more researches are happening in West on honey, usefulness of honey. ये जो है 1 साल से बड़े बच्चों को ही देना चाहिए, 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता। तो अगर सर्दियों में खास तौर पे अगर आप 1 चम्मच शहद डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड मेरा तवज्जो रहता है, एंड द थिंग व्हिच आई स्ट्रेस अपॉन इज रोल ऑफ विटामिन सी। Besides all other vitamins which are needed, which I'll come to you in later on, but vitamin C जो कि नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है ऑरेंजेस, आंवला, नींबू पानी में, इन चीजों का सेवन डेली करना चाहिए, चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मी, डजंट मैटर। हमारा ये मानना है कि जो नींबू पानी और सर्दियों में इससे गला खराब नहीं होएगा, द आंसर इज नो। इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस। जो थर्ड एक जो अभी डिस्कशन चला था कि सनलाइट, रोल ऑफ सनलाइट की रिकेट्स, रिकेट से तो बचाता ही है। विटामिन डी का रोल आजकल हर चीज में बढ़ता जा रहा है। हर इम्यूनिटी के डिस्कशन में जो साइंटिफिक फोरम पे डिस्कशन होता है वो विटामिन डी पे होता है। देयरफॉर एडिक्वेट सनलाइट का मतलब है कि 45 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। बट हम चूंकि डार्क कलर ड्रेसेस हैं और हम कपड़े काफी ज्यादा पहनते हैं, इस वजह से एडिक्वेट विटामिन डी हमारा एक्सपोजर होता नहीं है। देयरफॉर जब भी निकलें तो थोड़ा से कपड़े इतना कम कर सकें, छोटी बाहों के पहन सकें, वो ज्यादा बेटर है, अगर डेंगू सीजन नहीं चल रहा है तो। थर्डली, अगर आपको विटामिन डी कम लेवल आ रहा है या आपको टायर्डनेस महसूस हो रही है तो विटामिन डी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे सप्लीमेंट आपको ले लेना चाहिए। साल में एक बार 4 से 6 डोजेस होती हैं, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। कमिंग बैक टू डाइट, आई वुड स्ट्रेस अपॉन कि पेरेंट्स जो अच्छा खाएंगे वो ही बच्चे कॉपी करेंगे। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बिहेव डिफरेंटली। मैं तो ऑर्डर कर रहा हूँ बर्गर और बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ वो खाएं रोटी, सब्जी, दाल, चावल। इट कैन नॉट हैपन। सो पेरेंट्स हैव टू सेट एन एग्जांपल बाय देमसेल्फ, व्हिच मींस कि अगर गुड हैबिट्स बननी है तो पेरेंट्स को देख के बच्चों की अपने आप ही बन जाती हैं। सो इफ आई एम मच मोर इनटू, एंड अगर वो बच्चों को साथ में लेके एक ही डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे हैं तो जो आपके लिए बना है वो बच्चे अपने आप ही लेने की, या आप ही उनको कह सकते हैं कि ये बना है आज ये खाएं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इससे थोड़ी सी फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ती है एवं बच्चे को वो हैबिट्स भी अच्छी पड़ जाती हैं शुरू से। तो आई डिवाइड डाइट इनटू 3 मेजर मील्स, विच मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 स्नैक्स, आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रूट जो कि सीजनल चल रहा है। आई वोंट go for exotic fruits like kiwi or any other of this sort. And second time snack can be anything. I generally prefer कि अगर आप पॉपकॉर्न बना दें, आप अगर मखाने सेक दें, आप अगर इनको स्प्राउट्स का कुछ वो बना के दे दें या चिवड़ा दे दें, ऐसी चीजें जो कि नॉन ऑयली बेस्ड हों, वो सब चीजें दी जा सकती हैं। अगर और कोई क्वेश्चन बचा है तो आई एम हैप्पी टू आंसर, एंड दिस इज द स्टार्टिंग नोट। Doctor, I have a few questions just asking, keeping in mind the audience. एक तो जब वैक्सीनेशन खुल चुका है 15 प्लस एज ग्रुप के लिए, तो पेरेंट्स के काफी पिछले वेबिनार्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसको लेके कि बच्चों को, एक तो लोग डर रहे हैं वैक्सीन देने से, दूसरा वो पूछते हैं अगर हमारा बच्चा वैक्सीन लेने जा रहा है स्कूल तो उसको क्या खिलाएं, पहले कुछ दवाई दें,
कोई प्रिवेंशन लें ताकि बाद में जाके साइड इफेक्ट्स ना हो, एंड ऑल्सो कि उनको उनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कैसे बढ़ाएं ताकि उनको वैक्सीन के बेस्ट बेनिफिट्स मिले और प्रोटेक्शन मिले ओवरऑल लाइफ में भी वायरस से। ये काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। सो बेसिकली इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि बच्चा जो है खाली पेट वैक्सीन लेने ना जाए, क्योंकि इंजेक्शन के नाम से वैसे ही डर जाते हैं और इंजेक्शन का पेन वगैरह से कई बार उनको वेजोवेगल कोलैप्स हो सकते हैं। देयरफॉर कुछ भी लाइट स्नैक खाया हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर बेटर है। उसके साइड इफेक्ट से प्रिवेंशन के लिए मैं कोई ऐसी मेडिकेशन रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एट द साइट जहाँ पे इंजेक्शन मिला है वहां पे पेन होना, या फिर फीवर होना, या हेडेक होना, इन तीनों अवस्थाओं में क्रोसिन लिया जा सकता है, जो कि वो रिकमेंड कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। इसके अलावा मेजर साइड इफेक्ट्स कोई खास है नहीं ऐसे वैक्सीन के। इट हैज बीन ड्यूली टेस्टेड इन किड्स, देयरफॉर देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन लेफ्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये और कुछ नहीं तो ये डिजीज से तो बचाएगा ही, एवं इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो मिस्क नाम की कॉम्प्लिकेशन है विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, उससे डेफिनेटली बचाएगा। और जहां तक सवाल रहा कि कोई ऐसा डाइट खाने से जो है इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी वैक्सीन की, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डाइट आपको सदैव खाते रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई सीजन आएगा कि इस सीजन में हम अच्छी डाइट लें या इस सीजन में हम जंक खा सकते हैं। वंस अ वीक जंक इज एग्जेम्प्टेड फॉर किड्स, अदरवाइज बाकी तो हमेशा नॉर्मल डाइट को ही प्रेफर करना चाहिए। Doctor, the next question is, sorry, someone was asking a question. Okay, no, Naina, please go ahead. I will ask again. Yeah, my next question was कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाए, ओमाइक्रॉन हो रहा है बच्चों में, so what should parents really do to make sure that their immunity remains up, उनको कोई complications ना हो, because आजकल पूरे globally हम लोग सुन रहे हैं कि काफी बच्चों को कोविड हो रहा है। या सो जैसा मैंने बताया कि बच्चों में एक तो ओमिक्रॉन वैसे ही माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है, एंड बच्चों में और भी माइल्ड फॉर्म में होता है। सो इसके लक्षण जो पाए गए हैं वो है माइल्ड ग्रेड फीवर, कई बार मॉडरेट टू हाई ग्रेड हो सकता है, अदरवाइज कफ, कोल्ड, हेडेक, nausea and vomiting, these are the symptoms। इस वक्त जो अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर लें, जो कि एज अप्रोप्रिएट डोज जो बनती है उस बच्चे के वजन के हिसाब से खांसी जुकाम बुखार के लिए वो ही करना है। इसके अलावा और लोग बाग कई बार मेरे से पूछते हैं कि कोई मल्टीविटामिन दे दिया जाना चाहिए इस दौरान, ऐसा कोई वो नहीं है कि मल्टीविटामिन फायदा करेगा। देयरफॉर आई डू नॉट रिकमेंड एनी मल्टीविटामिन वेदर ड्यूरिंग इन्फेक्शन और टू प्रिवेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप जैसे मैंने बताया कि खाने पे ज्यादा तवज्जो दें एज कम्पेयर टू मेडिकेशंस। एनी ऑफ द मेडिकेशन इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। सो वी नीड टू टेक नॉर्मल डाइट थ्रू आउट, और इस दौरान भी आपको नॉर्मल डाइट का ही सेवन करना है। कोई अलग से आपको रेस्ट्रिक्शन या सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट ऐसा कुछ नहीं करना है। Hello, doctor. I was talking in the beginning that nowadays the vaccination campaign is going on in the schools. So few of the children, they reported that they are currently having COVID. So if any child is suffering from COVID, like after how many days he can take the vaccination once he recovered? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। सो आई वुड प्रेफर गैप ऑफ 3 months बिटवीन कोविड इन्फेक्शन एंड कोविड वैक्सीन, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा ये वैक्सीन कैसे बचाते हैं। ये वैक्सीन एंटीबॉडीज होते हैं बेसिकली, जो कि जब देते हैं छोटी डोज ऑफ वायरस है जिससे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं। वो एंटीबॉडीज अब जब फर्दर एक्सपोजर होएगा कोरोना वायरस का, तो वो एंटीबॉडीज उस कोरोना वायरस को मारने का काम करते हैं। अगर एक बच्चे को या किसी भी इंसान को जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन अभी हो गया है, उसके शरीर में अपने आप ही एंटीबॉडीज बन जाते हैं। देयरफॉर वो जो एंटीबॉडीज बने हैं आफ्टर इन्फेक्शन, दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फॉर नेक्स्ट 3 months। तो जब तक वो कम नहीं हो जाए ये वायरस, ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए। इस वजह से आई वुड रिकमेंड अ गैप ऑफ 3 months। Okay. डॉक्टर साहब मेरा एक प्लीज मैम प्लीज। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, इफ लाइक इंजेक्शन लगने के बाद अगर बच्चे को कोरोना हो जाता है
देन व्हाट, सेकेंड डोज लेनी चाहिए या फर्स्ट डोज दोबारा रिपीट करेंगे हम? नहीं, फर्स्ट डोज दोबारा नहीं, फर्स्ट डोज तो लग गई, सेकेंड डोज ही करेंगे और वो 3 महीने के बाद करना चाहिए आफ्टर द इन्फेक्शन। ओके, ठीक है। One child has asked this question. It is Sneha Sharma of class 12th. She has written that nowadays, because of pandemic, we hear the news where just 2 or 3 days old infant can be a victim of Omicron. So how can we keep them safe, as an infant's immune system does not mature until they are about 2 to 3 months old? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इम्यूनिटी जो है ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में भी बच्चे में इम्यूनिटी आ जाएगी। कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, जिनमें से एक होता है मैटरनल एंटीबॉडीज, विच मींस माँ के द्वारा एंटीबॉडीज बच्चे में जाते हैं और जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ चिकन पॉक्स का। हर एडल्ट को प्रोबेबली एट सम स्टेज चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो रखा होता है, इंक्लूडिंग जो मदर्स हैं। अब जब वो बच्चा पैदा होता है तो दे आर इम्यून अगेंस्ट चिकन पॉक्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ये समझ लीजिए कि फर्स्ट 6 मंथ्स में उस बच्चे नवजात शिशु को 6 महीने तक चिकन पॉक्स नहीं होता है। या सिमिलरली मीजल्स, मम्स और रूबेला जैसी घातक बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन माँ के थ्रू स्वतः ही बच्चे में चला गया है, क्योंकि माँ के शरीर में जो एंटीबॉडीज थे वो एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में जा चुके हैं। सो ये कह पाना बड़ा मुश्किल रहता है कि जो शुरू में जो बच्चा है उसके इम्यूनिटी नहीं है। देयर इज अ गॉड गिवन इम्यूनिटी टू दोज किड्स बाय मदर। सो माँ के द्वारा इम्यूनिटी बच्चे में आ चुकी होती है। अब मैं आपको इस केस का एग्जांपल दूं कि ये बोल रहे हैं 2-3 दिन का बच्चा है, यस ओमिक्रॉन हो सकता है। सो जो अभी रिकमेंडेशंस है वो मैं आपको बता दूं कि अगर माँ को कोविड हो रखा है और बच्चे को उसको दूध पिलाना है तो वो पिला सकती है, सिर्फ उनको मास्क पहनने की आवश्यकता है, अदरवाइज वो पूरा केयर करेंगी। और 2-3 दिन का बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको सीवियर इलनेस होगी, उम्र का ऐसा कोई इसमें ज्यादा वो पाया नहीं गया है। रादर जैसा मैंने बताया कि बच्चों में ओवरऑल ये रिसेप्टर्स कम होने की वजह से ये इन्फेक्शन वैसे भी कम ही पकड़ा जाता है बच्चों, और अगर पकड़ा भी जाता है तो बहुत माइल्ड रूप में होता है। Alka ma'am, you had a question. Yeah, thank you, Dr. Rajeev, for enlightening us. And I just had a question. I do not know it's related to COVID or not, but in my beginning remarks also, I talked about rickets. From what I'm studying, the number of cases have increased. So, how do you suggest our children to make their habits, their eating habits or their playing habits, so that they are immune from this thing? Because the numbers is actually increasing a lot in like not even the malnutrition children, but even at the upper like the families which are actually giving good and healthy food also. So what do you suggest? आपकी आवाज बाद में म्यूट हो गई, बट जो मैं समझ पाया हूँ, अभी तक सुन पाया हूँ, रिकेट्स, यस रिकेट्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैंने एमडी अपनी बॉम्बे से की है, एंड आपने धारावी नाम के स्लम्स का नाम सुना होगा। सो उस दौरान धारावी में बहुत ज्यादा रिकेट्स का इंसिडेंस होता था, क्योंकि वहां पे सबकी छतें मिली हुई हैं। Therefore, there was no exposure to sunlight during those days. As a consequence, most of the Dharavi kids used to come to rickets. उसके बाद आप समझ लीजिए कि दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया में रिकेट्स कभी देखा नहीं गया था। बट क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, विच इज मोस्ट ऑफ अस स्टे इंडोर्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या कुछ भी आप समझ लीजिए, लाइफस्टाइल एसी की आदत हमें पड़ चुकी है। सो हम ज्यादा से ज्यादा जब गर्मियों के समय में अंदर ही रहना पसंद करते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। Therefore, the incidence of rickets and vitamin D deficiency is in the epidemic form. अगर आप 100 जनों का विटामिन डी लेवल करेंगे तो उनमें से 90 से 95 जनों का विटामिन डी लेवल इंक्लूडिंग मेरा भी कम ही होगा, क्योंकि हम घर से ऑफिस जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, और अंदर आके भी जो है हम सिर्फ कंप्यूटर या ऐसी चीजें इंडोर ही प्रेफर करते हैं दीज डेज। तो इसका सॉल्यूशन 2 ही है जो मैं बता सकता हूँ। एक तो इंक्रीज एक्सपोजर टू सनलाइट, जैसा मैंने बताया कि कपड़े कम, क्योंकि
we consider ourselves as a dark skinned race. सो हम कॉकेशियंस की तरह जो यूरोपियंस हैं उनकी तरह हम सफेद चमड़ी वाले नहीं होने की वजह से, और ये जो डार्क लेयर है, मेलानिन की जो लेयर है, इसकी वजह से सनलाइट का पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। एज अ कंसिक्वेंस हमें ज्यादा लंबा एक्सपोजर चाहिए और हमें कपड़े कम पहनने चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो हाफ बाइंग की शर्ट और हाफ बाइंग, मतलब ट्राउजर्स की जगह हाफ शॉर्ट्स पहन के गर्मियों में जितने बच्चों निकल सके उतना ज्यादा बेटर है। सेकेंडली, अगर वो तो सबसे आइडियल है क्योंकि सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर वो कम हो पाता है तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज द ओनली थिंग आई विल रिकमेंड, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि सारे विटामिन में भी साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन ज्यादा लेने से भी फायदा होगा। देयर इज अ लिमिट टू इट विच वन मस्ट कंज्यूम दिस विटामिन एज वेल। ऐसे खाने की तरह फाँकना नहीं चाहिए। इवन विटामिन डी पॉइजनिंग के केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं। देयरफॉर इट हैज टू बी ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। Thank you so much, doctor. Thank you so very much. Dr. Rajeev, I've got a few questions on Facebook. Anita Bhatt is asking, my child is 14 years old and some of his hair is graying at such a young age. So what could be the reason for that? So again, the water is to be blamed for this thing. जो हार्ड वाटर अगर है आपकी सोसाइटी में जो आ रहा है उसकी वजह से ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है। देन सेकंड रीजन इज हेरिडिटरी कॉजेस, बट हेरिडिटी भी इतनी जल्दी नहीं शुरू होता है। सो आप कोशिश करें कि एक तो आरओ वाटर से इनको नहलाएं, सेकंड एक बायोटिन सप्लीमेंटेशन करने से भी फायदा मिलेगा। So biotin is there in various nutritional things like मटर में हो गया या जैसे legumes हो गए, lentils हो गए, इन सब में होता है। Otherwise चूंकि अब हो चुके हैं premature graying, therefore biotin supplementation to be prescribed by the doctor will take care. Otherwise general recommendation है कि एक तो आयुर्वेदिक products use करें, synthetic chemicals का इस्तेमाल ना करें और RO water का इस्तेमाल करें बाल धोने के लिए। अनुराधा जी पूछ रही हैं, can vaccine be given to post BMT child done BMT in 2018? Yes, ये हमेशा वरी रहती है पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में कि उनकी इम्यूनिटी, उनके चूंकि 2018 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रखा है, अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम ले सकते हैं वैक्सीन, कोई नुकसान नहीं। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि बच्चों को कहते हैं बच्चे कोविड से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं बिकॉज उनके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे हैं। So someone is asking then why to give another vaccine to a child if they get COVID, they will get okay anyways. So why should they vaccinate? Very good question. So let us suppose कि अभी 100 बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, जिनमें से अगर 5% बच्चों को मिस होने के चांसेस हैं, तो इन 100 में से 5 बच्चों को मिस होएगा विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। लेकिन अगर 100 बच्चों को वैक्सीन दे दिया और ये 5 मिस नहीं हुए, miss is a complication which is seen 4 to 6 weeks after getting the infection. अगर वो हमने प्रिवेंट कर लिए तो वो नथिंग लाइक इट। मिस के जो ट्रीटमेंट है वो काफी महंगा ट्रीटमेंट है, जिसमें आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है which is a costly medication। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का मेडिकेशन आता है, प्लस why to undergo a life threatening illness when you can prevent it। यही So, अनफॉर्चुनेटली ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में रहता है कि अगर कुछ क्यों एडिशनली जाके वैक्सीन दे या कुछ करें, पीपल डोंट रियलाइज द लॉन्ग टर्म और द कॉम्प्लिकेशंस यू नो दैट कैन कम आउट ऑफ इट। वही हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई डॉग बाइट हो जाता है तो कोई पेरेंट नहीं जाके डॉक्टर से पूछता कि रेबीज वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसको परसों बच्चे को क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, रात को क्या होगा, वो लगवा देते हैं। सिमिलरली कोई भी अगर इलनेस हो जाए तो वो फटाफट जाके वैक्सीन तो लगवा लेते हैं, मेडिसिन भी दे देते हैं, मेडिसिन का पूछते नहीं है कि डॉक्टर आप कौन सी दवाई दे रहे हो। बट ये लाइफ सेविंग अगर वैक्सीन आया हुआ है तो सबकी यही क्वेश्चन है, पहले वो 10 दिन रिसर्च करेंगे, फिर और 20 लोगों से पूछेंगे, फिर वैक्सीन देंगे।
You are so right, Naina. You are so right. लेकिन नैना जी, इसके लिए हमारा मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है. हाँ जी. Because the kind of news and the kind of इतना ज्यादा इल्यूजनरी वो देते हैं, न्यूज देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं कि लोग डिल्यूट हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्या माने, क्या ठीक है. अच्छा सर, मैं आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग. जैसे स्कूल्स में हमारे पास स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे जैसे ऑटिज्म है या एडीएचडी है, या तो इन बच्चों को अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए जब हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो मतलब this vaccination is going to have the same impact on everyone, या इनको Yes. कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? नहीं, कोई ऐसी प्रिकॉशन, अत्यधिक प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है. यस, कई बार वो बोल नहीं पाते कि भाई उनको पेन वगैरह हो रहा है, बट देयर आर अदर वेरियस मेजर्स थ्रू व्हिच दे कैन कम्युनिकेट टू अस in form of irritability, in form of crying, in form of increased heart rate, in form of not able to lift the arm, move the arm. In those cases, yes, we can preemptively give them the medication. जैसा मैंने बताया, पैरासिटामोल दे सकते हैं, बट अदरवाइज एज सच उनके लिए कोई रिस्क नहीं है. ओके. और जहां तक इन बच्चों का केयर करने की बात रही, मैं आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि आई लुक आफ्टर किड्स विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. Okay. तो मेरे साथ आप अपना नंबर शेयर कर लेंगे तो आई विल बी हैप्पी टू. I will be sharing, sir, because we have a special inclusive unit in the school and we are catering the children with the cross disabilities. Okay. So we will be looking forward for your guidance. Thank you. And, thank you. And few students, they are asking that is there any special kind of along with the food, special kind of drinks which should be taken to boost the immunity? जैसे कुछ लोग एलोवेरा रिकमेंड करते हैं या कुछ और चीजें, मतलब कोई खास उनको? तो आयुर्वेदा की मेरे को नॉलेज नहीं है. आई एम एलोपैथ डॉक्टर, एज यू कैन सी. हमारा ये मानना होता है कि आयुर्वेदा इज एब्सोल्यूट फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, बट दैट इज नॉट 100% ट्रू. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि हम तुलसी जो घर में उगाई हुई, अगर तुलसी खा रहे हैं, दैट कंटेन्स लॉट ऑफ lead which can leads to kidney failure if you consume it on a daily basis for few years together. अब जो तुलसी आपने अपने घर में उगाई हुई है, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाए हुए, बट उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जमीन से सॉइल से लेड अपने उसमें ले लेती है. सो अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तुलसी, जिसको हम इतना पवित्र पावन मानते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. सेकेंडली, आई गिव यू एन एग्जांपल कि पान का पत्ता, पान का पत्ता खाने से सबको पता है कि कैंसर हो जाता है डेली पान खाने से. सो जो वो पान के पत्ते का जो बीच की वो डंडी है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं. तो अगर आपको पान खाना भी है तो वो डंडी सेंटर वाली काट दीजिए और दोनों तरफ वाला बाकी आप पत्ते खा सकते हैं. तो वो भी एक आयुर्वेदिक ही आप समझ लीजिए. सो क्योंकि वो पत्ता है, पत्ते को खाने से कैंसर हो रहा है. तो इट्स नॉट कि आयुर्वेदा में जो है साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो स्टडी कम किए जाते हैं. आप ये समझ लीजिए, हमारी ये बेसिक मान्यता है कि आयुर्वेदा इज फ्री ऑफ साइड इफेक्ट और एलोपैथी इज फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स. इट्स नॉट लाइक दैट. हमने स्टडी किया हुआ है, इस वजह से हमें पता है कि इस दवाई के कितने क्या साइड इफेक्ट हैं. बट आयुर्वेदा में भी लॉट ऑफ स्टडी नीड्स टू बी डन एंड देन ओनली टू बी यूज्ड. सो जहां तक सवाल रहा कि एलोवेरा का, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेरी. जहां तक हमारे कुछ एक मेडिकल ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं which can be added to milk to supplement, वो रिप्लेस नहीं कर सकते डाइट को, ये आप ध्यान रखें. yes, they can supplement, that's why they are what supplementary nutrition. तो अगर किसी विटामिन की किसी चीज में कमी है कि कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहा है या कोई किसी तरह का एक पर्टिकुलर दाल नहीं खा रहा है, यस, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स, वो उसके थ्रू आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं. बट वी जनरली डोंट रिकमेंड जो आप डेली टीवी पे देखते हैं कि कॉम्प्लान हो गया, बूस्ट हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, वैसी चीजें नहीं. देयर आर सर्टेन ड्रिंक्स व्हिच आर वेरी वेल स्टडीड बाय पीडियाट्रिशियंस अराउंड द वर्ल्ड. वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, रादर देन ये जो मार्केटिंग गिमिक वाले जो आप टीवी में डेली ऐड देखते हैं, वो हम में से कोई रिकमेंड नहीं करता है जनरली स्पीकिंग. ओके. If anyone in the audience किसी को भी question पूछना है तो please raise your hand or type your question in the chat box and we will
ask you to come forward and ask your questions. Opening it up, अगर किसी के भी questions हैं, please chat box में डालिए, नहीं तो अपने hands raise कर लीजिए, तो हम आपको एक एक करके chance देंगे बोलने के लिए. Until we are waiting for that, any of my co-hosts have any other questions before I ask my next question? Sir, one question from my side. This is a regular question. The kids do not eat in the morning. They come empty stomach and the parents have the first query. Admission process खत्म होता है सर, school start होता है, मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं है मैडम, इसको कुछ खिला दीजिएगा. So can you tell us some supplement which the child can have which is going to be nutritious and he's not empty stomach also? We tell them you bring 5 almonds and 5 raisins, but like they are not ready for that. They said इससे थोड़ा ना कुछ होता है मैडम, जब तक ये पराठा नहीं खाएगा और अच्छी तरह घी लगा के नहीं खाएगा. अब सर घी की भी डेफिनेशन आप बताइए, whether ghee is good or bad or which oil must be preferred. That is what is the query of I think 2 parents who have asked me. If you can guide us. आपने 2-3 सडनली अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट, घी का रिकमेंडेशन. यस, घी हैज टू बी गिवन, इट इज टू बी गिवन एंड इट शुड बी गिवन. तो घी का कोई वो नहीं है कि भाई घी नहीं खाने से आप स्वस्थ रहेंगे या घी अत्यधिक घी खाने से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा भी नहीं है. एवरीथिंग इन मॉडरेशन हैज टू बी कंज्यूम. सेकेंड क्वेश्चन रहा कौन सा ऑयल रिकमेंड करते हैं. सो साइंस इज एवर इवॉल्विंग. आज से 25-30 साल पहले मस्टर्ड ऑयल हम यूज करते थे. उसके बाद जमाना आया नहीं मस्टर्ड ऑयल खराब है, वेजिटेबल ऑयल यूज करते थे. उसके बाद आया सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद आया सेफ्लॉर ऑयल, उसके बाद आया कॉर्न ऑयल और उसके बाद आया ऑलिव ऑयल. And now again we are back to square one. We are saying mustard oil is supposed to be the best. So इसका मैं एक अच्छा पॉलिटिकल आंसर देना चाहूंगा, वो ये है कि आप ऑयल हमेशा रोटेट करते हैं. अगर इस महीने आप मस्टर्ड ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आप सनफ्लावर कर लीजिए, थर्ड मंथ आप ऑलिव ऑयल कर लीजिए, फोर्थ मंथ आप सैफलॉर कर लीजिए, फिर आप कॉर्न ऑयल कर लीजिए. ऐसे करके यू कैन कीप रोटेटिंग सो दैट हम डॉक्टर्स भले ही अपनी वो चेंज करते रहे लेकिन आपको कोई नुकसान ना हो और सारे हर ऑयल के फायदे मिलते हैं. आपका थर्ड क्वेश्चन था ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी न्यूट्रिशियस. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. सो हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए. ये नहीं है कि पराठा और घी सपोज टू बी द मोस्ट हेल्दी न्यूट्रिशियस या 5 बादाम के दाने, उससे कुछ नहीं होगा. So it should be one of the best meals for the child and it has to be varied in content. So किसी दिन आपने उपमा बना दिया, किसी दिन आपने हलवा बना दिया, किसी दिन पोहा दे दिया, किसी दिन सैंडविच दे दिया, किसी दिन बेसन चीला दे दिया. You need to keep rotating as per child's need and fussiness. So उसको आपको किसी तरीके से एल्योर करके कुछ ना कुछ टेस्टी बना के देना है. So there is no unfortunate shortcut to keep बादाम से हो जाता है या पराठे से ही न्यूट्रिशन जाएगा. किसी दिन आपने कोई पराठा स्टफ पराठा बना के दे दिया, किसी दिन कुछ और कर दिया. सो इट हैज टू बी अ वेरिड सॉर्ट ऑफ थिंग. कैन नॉट एंड अप सेइंग कि नहीं जी डेली पराठा खाना चाहिए, ऐसा नहीं. So doctor, I have one question. कि and ये सारे बच्चे and again in the past 20 sessions at least I have been asked this question कि बच्चे full fledged school वापस कब जाएंगे and वो दिन कब आएगा that they are able to go properly back to school. We are all having enough immunity to kind of tackle the virus in a more normal way. बच्चों को तब तक वैक्सीन्स भी लग चुकी होंगी because the overall emotional and mental health impact of being shut at home continuously, which I can see a lot of children nodding to also, कि वो घर कब तक बैठेंगे and कितना उनका education life पे impact आता है and what is the way to again coming back to immunity, parents ऐसे क्या करें जो इतनी strong immunity बनाए अपने बच्चों की that everyone contributes to life coming back to a little bit of normalcy. Very apt question, Naina. So who is stopping them to go back to school besides government? I can tell you I was one of those and my colleagues were one of those who represented to Chief Minister of Haryana and our Honorable Prime Minister and requested them to get the schools open. क्योंकि इसका जो इनके बिहेवियर पे और इनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, ग्रोथ इज वन थिंग व्हिच इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन ऑन अ डेली बेसिस, बट डेवलपमेंट हैज स्टॉप्ड.
जो interaction के through learning होती है, that has stopped. So we are very strong advocates of starting the schools, or school start bhi ho gaye the, but what was the result? Teachers were coming, doctors were advocating to send the kids to school. Who was reluctant? It's at the end of the day, the parents were the only one who were reluctant to send the kids to school. हमने अपनी तरफ से इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने लेटर लिख के दिया कि बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, and that they should be allowed to join the school soon. But parents की reluctance और एवं गवर्नमेंट के कुछ निर्देश कई ऐसे जगह पे आए जिस वजह से ऐसे लेना पड़ा स्टांस कि भाई स्कूल्स बंद कर दिए, बट अदरवाइज हमारी तरफ से the sooner they start going back to school, the better it is for their development. As far as infection is concerned, I have made it loud and clear many times earlier as well कि बच्चों में इतना infection नहीं है, severity बिल्कुल नहीं है. If I can share you the data of Artemis, पिछले 2 साल में जब से कोरोना आया है, सिर्फ 2 बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है. एक बच्चे को 5 दिन के लिए, एक बच्चे को 1 दिन. This is what it is. So I don't know why they are frightened. And ऐसा कुछ नहीं. डॉक्टर आप म्यूट हो गए. अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दें जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करे तब से. So I just had a quick idea here. I know I've been doing this session with so many school principals and reputed teachers and schools overall. And I think her school, ma'am, you can correct me if I'm wrong. Every school has been trying to change the perception of parents to their children to school. वही जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया कि टीचर्स जा रहे थे स्कूल में, प्रिंसिपल्स जा रहे थे स्कूल में, बट पेरेंट्स weren't sending children to school. And I do realize that the media has a lot of role to play in the perception of parents, and there is a lot of misconception and myths in the minds of parents. वो डर जो बैठा हुआ है, which I feel that all of us together need to work towards taking out that fear. Since we are connected with hundreds of schools and principals, maybe as an NGO we can take up this thing to come up with a collaborative media statement guided by doctors like you, Dr. Rajeev, where we can say that even doctors, principals, everyone together is saying the same thing कि school जाने में there are far less complications for students to send them to school versus the long term mental health effects and the growth disability, if not anything else, that students are facing because of that. So we would love to take that up as an NGO, to kind of connect the dots and to be able to, and thankfully I come from I have a PR agency, so I know the other side of how to get the message out in the media. So would love to take this up with everyone's support. I'm absolutely on for it, and we can do by joining hands together, and then I can represent the medical fora as well. Yes. Because in the past, of course, through Dr. Agarwal, we've done a lot of work with Indian Academy of Pediatrics. We've done a lot of work with Indian Medical Association as well. And I think that was truly his belief and his vision as well, to pick up such causes right, along with the society and the fraternity, to be able to dispel such myths along the way. Absolutely. I think we need to work together in this field. We really want our students to be back to school. We want the school walls to be humming with, the sounds of the students. It's become so dull. At times, I feel even depressing also. So we want them to come back. And yes, parents have to be educated about it. And few days back, there was a report in the NDTV as well as in the Economic Times also that there is no correlation between the increasing corona cases and the schools reopening. Yes, World Bank has come up with it. Yes. So and in many of our states, I think some kind of comparative study should be there, because in many of our states, the schools were working. They worked for a good period of time. And how much was the impact on the number of cases? Because in Delhi they have been closed for a long time than the rest of the states. So I definitely feel, because when
for few days the schools reopen and the students come back, I feel that there is a complete change in the behavior of the students. They do not know how to behave in front of the school faculty members. Like they don't behave naturally. They feel that there is something, they feel comfortable in interacting with them virtually, but not in the real world now. And the same is happening with their friends in social circle also. So I'm really worried about this situation, that how long the schools are going to be closed like this. The next pandemic will be of mental disorders, behavioral disorders in children, and much more importantly, obesity. Because they are not exercising as they should be, they are not going outdoors at all as a consequence. And obesity, seriously speaking, I consider is that mother of all diseases. एक बार obesity हो गई, fat cells increase हो गए childhood में, then later on they will eat one chapati and will become much more obese later on. So obesity will lead to hypertension, to stroke, and decreased longevity of their life. So it's going to be a double-edged sword. So I agree with you. We have students with high BP. Like I've never heard in the student, but now we are getting such students also. Parents are coming and telling us कि he has got very high BP now, and you know such precautions he has to take. तो उसको stress नहीं देना है, वो नहीं देना है. Stress, anxiety, irritability, intermixing with other kids, behavioral skills, interpersonal behaviors, all of these things are getting jeopardized. Yeah, gaps are there, social interaction gaps, learning gaps. I think it'll take us in the field of education. I think we have gone 4 years back, not technology wise 10 years ahead, but for gap wise 4 years we have taken 4 steps back. So yeah, I would love to collaborate with everyone on this. I think this is a universal ask from all principals, and a request to figure out ways in which to actually change the perception of parents more than anything else. Doctor, just give me 2 minutes. I'm going to quickly take three little children have questions. I'm just going to. Saira, आपका question था? आप. Yes, ma'am. हाँ जी. My daughter is 4 years old. How can we increase 4 years? My baby is 4 years old. How can we increase appetite of the child? इनका वजन कितना है पहले ये बताएं. 15. ओके. सो 4 साल के बच्चे का वजन आइडियल 16 किलो होता है. एपेटाइट एक तो जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह से शाम तक आप ऑफर क्या करते हैं. देयर हैज टू बी अ लॉन्ग डाइटेटिक हिस्ट्री. सुबह से शाम तक आप क्या ट्राई करते हैं. कई बार पेरेंट्स करते हैं, आपने हलवा बनाया, बच्चे ने 2 चम्मच खाई, उसने छोड़ दिया, आप आधे घंटे बाद दोबारा उसके लिए कुछ जूस बनाएंगे, फिर उसने 2 चम्मच पिया, फिर घंटे भर बाद क्योंकि आपका मन नहीं माना कि हलवा नहीं खाया, मैंने इतने प्यार से बनाया, जूस बनाया, वो भी नहीं किया, फिर आप घंटे भर बाद बहुत फूड ट्राई करते हैं, वो भी नहीं खाया. तो आप इसको 1 घंटे का ब्रेक दिया करें हमेशा बच्चे को. सो आफ्टर 2 आवर्स में देती हूँ. आफ्टर 2 आवर्स ब्रेक दें कम से कम. सो जैसे अगर 9 बजे आपने या 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट कराया तो 10:30 11 बजे आप फ्रूट खिलाएं. 1:30-2 बजे करीब लंच ट्राई करें. 4 साढ़े 4 बजे कुछ स्नैक्स बनाएं उसके लिए, और 7:30 8 बजे डिनर ट्राई करें, और सुबह शाम 2 बार फ्रूट ऑफर करें. एक तो अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो बार बार उसके पीछे ना पड़ जाए. सेकंड थिंग इज ये देखना है कि बच्चे को कहीं कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है. ये तो नहीं कि आप दूध उनको 2 बार से ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, बट दैट में लीड टू कॉन्स्टिपेशन एज वेल. तीसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फिर देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच इंक्रीजेस एपेटाइट, बट वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर को एग्जामिन करा के ही लें. ऐसे रिकमेंड करना नहीं चाहूंगा मैं. आदित्य जी, आपका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस. आई थिंक डॉक्टर राजीव ये बता चुके हैं दैट इट्स अभी रिसेंट उसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड गुड डाइट फॉर इम्यूनिटी. प्रकाश जी पूछ रहे हैं, सर बच्चे कॉफी पीते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? कॉफी इज अ स्टिमुलेंट, देयरफॉर जितना लेट चालू करें उतना बेटर है. इट्स अ स्टिमुलेंट. Kids can get used to of having coffee every time, and caffeine can have potential side effects in form of increased heart rate, anxiety, irritability, नींद नहीं आना, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स रहते हैं. Therefore, क्योंकि कॉफी में जो
हैं स्टिमुलेंट्स, वो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रेणु श्रीवास्तव जी, आपका क्वेश्चन था। Good evening, everyone. Thank you, Nana, for giving the opportunity. Am I audible? Yes, we Yes. can hear. And such a great initiative. If you are going to take that, I'm really very happy because yes, I can see a lot of emotional, physical, and other kind of changes in students as well as my own kids. They don't even want to talk to me. They want to stay in the room for the whole day. And same is happening in online classes. They don't want to switch on the camera. They don't want to face the world. And they are not able to understand that this is actually impacting them in real bad way. So really happy if you're going to take that initiative. My question is, sir, in maps we are continuously focusing on getting all the children which are allowed for vaccination to get them vaccinated. But what particular problem which I am facing is that when I call parents, some of the parents who are not letting their children get vaccinated, they have this thing ki, okay, my child is having cough or cold or mild fever. So what should be the parameter ki, okay, whether the child is they can go for the vaccination or not? Is mild fever, cough and cold is a parameter? Okay, nahi lena hai vaccination at that time? Please suggest that. कफ कोल्ड फीवर एक नॉर्मल सीजन अगर होता है, फीवर में हम वैक्सीन देने को मना करते हैं, कोई भी वैक्सीन, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनते हैं, बट अगर शरीर में कोई भी दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी है तो वो एंटीबॉडीज बनना हैम्पर हो जाता है, तो वैक्सीन का अपटेक बेटर नहीं होगा। माइल्ड कफ कोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनारियो जिसमें कोविड इतना रैम्पेंट है, जिसके लक्षण भी यही होते हैं जैसे कफ कोल्ड फीवर होना, तो बेटर वे है कि इसका आप टेस्ट कर लें। अगर वो कोविड हो चुका है तो 3 महीने का गैप लें, क्योंकि अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है और अगले 7 दिन बाद आप वैक्सीन देते हैं तो वो एंटीबॉडी एक दूसरे से न्यूट्रलाइज कर देंगे, सो दोनों का ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। देयरफॉर कफ कोल्ड फीवर अगर है, गेट द चाइल्ड टेस्टेड फॉर कोविड। अगर पॉजिटिव है तो 3 महीने का डिले करें, नेगेटिव है तो वेट करें उनके रिकवर होने का। Okay. Thank you so much, sir. लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ। यश यादव, फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, वी आर आउट ऑफ टाइम। ओके मैम, सो आई एम सेइंग दैट मेरे दादू को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था एंड अभी तक उन्हें मीन 6 मंथ्स होने वाले हैं, एंड सो उन्हें वैक्सीन कब लेनी चाहिए? Dr. Rajeev, he wants to know his grandfather had stroke 6 months ago. Why aren't they giving him a vaccine yet? So we should be vaccinating. Yeah. Stroke is a comorbidity where all the more it's the reason for giving them a vaccine. काव्यांश जी, आपका क्वेश्चन। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट आया होगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आपको रिक्वेस्ट आया होगा अनम्यूट। आप जो अभी रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रेस करिए, अनम्यूट। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा बेटा 9 साल का है। हाँ जी। हेलो हाँ मैम, जी। मेरा बेटा 9 साल का है और मैं उसे हर चीज बना के देती हूँ, या तो वो अपने मन से ही नहीं खाता है, तो उसका नहीं समझ आता है मुझे कुछ भी। और क्या नाम है, 9 साल का है और इसका वेट है ना 18 किलो है मैम। ओके, सो बेसिकली 18 किलो काफी कम वजन है। मेरा हमेशा पेरेंट्स से यही फोकस रहता है कि ऑल गुड हैबिट्स जो भी बननी होती है वो 4 साल से पहले बनती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 4 साल से पहले अगर आपने बच्चे को सारी चीजें खिला ली, वो लाइफ लॉन्ग खाएगा। अगर 4 साल के बाद आप कोशिश करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे उससे। उनका वजन अत्यधिक लो होने की वजह से आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, कुछ एक ब्लड टेस्ट करना चाहेंगे, स्पेशली विच इंक्लूड्स एलर्जी टू मीट। अगर उनको मीट से एलर्जी है, जिसे हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं, उसमें वजन कम होता है, भूख नहीं लगती है, तो वो अगर एक बार टेस्ट नॉर्मल है तो उसके बाद कुछ और सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं टू इंक्रीज द एपेटाइट। बट पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू रूल आउट द डिजीज।
देयरफॉर 26 किलो होने की बजाय 18 किलो है अगर, तो 8 किलो का डेफिसिट है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, तो वो टेस्ट करा लीजिए। नहीं, मैंने इसका लोकनायक हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह जो भी ट्रीटमेंट वगैरह कराया था, इसकी हाइट भी बहुत कम है। तो तो वो सिग्निफिकेंट है। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल का लगता है ये देखने में, उससे भी कम लगता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज तो ठीक है, अब नहीं खाता नहीं है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, उसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं था। इसके लिए बच्चों के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं जो ग्रोथ डिसऑर्डर्स देखते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। Thank you so much. So sorry, there are some more questions, but we are going to have to take them the next time because it's already 5:05. Thank you so much, Dr. Rajeev. Can I now have Mrs. Sanjana Bakshi Datta to give the vote of thanks? I will connect with you offline, Dr. Rajeev, on what we discussed as well. Thank you. Thank you. Now I would say it's not the time to say thank you, but like time constraint hai. But sir, thank you so much for all the guidance. आपने जो जो चीजें बताई मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ने सुनी होगी, इवन जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने भी सुनी होगी कि हमें हरी सब्जियां खानी है। और दूसरी बात, जो चीज हम बच्चों को छोटी उम्र में खिलाएंगे वही वो डाइट रखेगा। So that means the parents have to take care that जब बच्चा पैदा हुआ है वहीं से उनकी जो है ये ड्रिल स्टार्ट हो जाती है कि जो भी आप बच्चे को जो खुद खा रहे हैं वही बच्चे को खिलाइए। ये नहीं खुद खाए जंक फूड और बच्चे को बोले नहीं तू जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो दिस इज नॉट देयर। सो वी मस्ट नॉट प्रीच, वी मस्ट प्रैक्टिस। अगर हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी रखना है, वी नीड टू हैव अ हेल्दी फूड। थैंक यू सो मच सर, एंड वी प्रे एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ओवर हियर बिकॉज आपने जिस तरह से बच्चों का वो सेशन लिया है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था कि उनकी साइकोलॉजी पे कैसे हेल्प करता है, उनके फूड हैबिट्स कैसे इफेक्ट होते हैं और उनका जो नेचर है वो कैसे इफेक्ट होता है, ये 3 जो फैक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस करे और उनका सोल्यूशन बताया, आई थिंक पेरेंट्स आर गोइंग टू पॉन्डर ऑन इट एंड थिंक अबाउट कि उनको अपना जो पूरा दिन चल रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो बच्चों के साथ अच्छी तरह डील कर सके। एंड आई थिंक दे कैन कनेक्ट टू यू ऑल्सो इफ दे हैव एनी क्वेरी। सो वी वुड रिक्वेस्ट नैना मैम कि अगर पेरेंट्स को कोई क्वेरी है सो वी कैन कनेक्ट टू सर सो दैट वी कैन सॉल्व दोस क्वेरीज। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। सर का भी थैंक यू एंड पेरेंट्स, kids and the principals who are over here as my co-host. Thank you so much for sparing the time, but I think it was worth it. We would love to have another session with sir so that we can understand the basic behind the grooming of the child in more depth. Thank you so much.